نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا آواز سلوات صلی علی محمد وآلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان الارض. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام النبی الموجد رسول المصدق بسمع في السماء احمد وفي الارض بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکہ. صلوات محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید انصار حسین زیدی مرحوم ابن سید غفور حسین زیدی مرحوم صاحب کی روح کو اصال صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وسلم. فرض الامام في وصلاه رسول الله الحمد لله انا انصار كان جديد نصر كان جديد روح وصال کرنا. اللهم صل على محمد وعلى کرم ہے چہردہ معصومین کا خصوصی صدقہ ہے بی بی شہزادی کونین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. خدا کی مبارک کتاب قرآن حمید فرقان مجید کہ جس کے لیے اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. یعنی قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو چیلنج کر سکے کہ ہدایت کے لیے کافی ہے. لیکن کتابوں میں دیکھا جائے تو واحد کتاب قرآن مجید ہے کہ جس میں ہر حکم کو اللہ نے رکھا کہ جو حکم انسانوں کے فائدے کے لیے تھا. انسانوں کے فائدے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر حکم کا ظاہری بھی اور باطنی بھی مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے
اب باطنی اعتبار سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے کا فائدہ، کہا کہ فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کی زندگی بہتر بن رہی ہے، اور باطنی فائدہ کہ اگر حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کے آخرت کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب دو فائدہ قرآن کریم کا، ایک ظاہری فائدہ ہے، ایک باطنی فائدہ۔ ظاہری فائدہ یہ ہوا کہ انسان زندگی میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، جب گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو باطنی فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں درجہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو ظاہری فائدہ بھی اور باطنی فائدہ بھی۔ بدن کے امراض ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کا ظاہری فائدہ، کہ بدن کے امراض جتنے بھی مرض ہیں وہ سب ختم سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی دل کا مریض ہے، اس کے لیے دعائیں ہیں کہ وہ دعا پڑھے، دل کی مرض ختم ہو جائے گا۔ یعنی جتنی بھی تکلیفیں انسان کے بدن میں ہے، ہر تکلیف کا حل قرآن کریم نے انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے، تاکہ تم ظاہری فائدے سے بھی استفادہ حاصل کرو، اور قرآن پڑھنے کے بعد جو ثواب حاصل کرو گے وہ تمہارے باطن فائدے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آخرت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم وہ قرآن کہ جس میں اللہ نے ہر حکم کو بندے کے لیے رکھا تاکہ بندہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر گزارے اور اپنی آخرت بہتر سے بہتر قرار دے سکے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا، کلہا تمام ناموں کا، اسماء کلہا تمام ناموں کا علم دے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے جناب آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا تو پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو اب کیا ہوا؟ دیکھیے، منصب خلافت کے لیے، خلافت ایک واحد منصب ہے کہ جس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا نہیں خلیفہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا نہیں خلیفہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن سب کا منشا یہ ہے کہ ہم جو خلیفہ مان رہے ہیں ہم اپنے ذریعے سے نہیں مان رہے ہیں، ہم جو خلیفہ مان رہے ہیں ہم قرآن کے ذریعے سے خلیفہ مان رہے ہیں۔ بھائی قرآن کا سب کا عقیدہ ہے نا، کوئی قرآن سے ہٹ کے کوئی حکم کو انجام نہیں دے سکتا۔ آپ اگر پوچھیں کہ آپ کی نگاہ میں منصب خلافت کس چیز کا نام ہے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ نے یہ آیت پیش کی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ جب تمام ناموں کا علم دیا تب آدم کو سجدہ کروایا۔ آپ دیکھیں، جب ناموں کا علم دے دیا تب آدم کو سجدہ کروایا، یعنی منصب خلافت کے لیے کوئی تسبیح کو معیار نہیں بنایا اللہ نے۔ غور کیجئے گا، منصب خلافت کے لیے، خلافت کے منصب کے لیے، خلافت کے پد کے لیے اللہ نے تسبیح کو معیار نہیں بنایا کہ کس نے کتنی تسبیح کی۔ منصب خلافت کے لیے اللہ نے عبادت کو معیار نہیں بنایا کہ کس نے کتنی عبادت کی۔ منصب خلافت کے لیے اللہ نے نماز کو معیار نہیں بنایا کہ کس نے کتنی نمازیں پڑھی۔ منصب خلافت کے لیے اللہ نے روزے کو معیار نہیں بنایا کہ کس نے کتنا سال روزہ رکھا۔ بھائی غور کیا آپ نے؟ خلافت کا منصب ایک واحد منصب ہے کہ جس میں اللہ نے عبادت کو معیار نہیں بنایا تو کس چیز کو معیار بنایا؟ قرآن نے اعلان کیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آدم کے پاس پنجتن کے ناموں کا علم آیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، یا تو تم ان کے نام بتاؤ یا پھر آدم کو سجدہ کرو، یا تو ان کے نام بتاؤ اگر تمہیں علم ہے۔ اگر علم سے انکار ہے تو پھر آدم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، یعنی سر کو جھکا دو۔ منصب خلافت کے لیے
तस्बीह को मेयार नहीं बनाया। वरना आप देखें, अगर इबादत को मेयार बनाता तो भाई फरिश्तों से ज्यादा कोई इबादत गुजार है? भाई आदम तो फरिश्तों के बाद की पैदावार है ना। फरिश्ते आदम से कई 100 साल पहले पैदा हुए हैं। भाई अगर इबादत मेयार होता तो फरिश्ते वहां पर सबसे ऊपर नजर आते। अगर तस्बीह मेयार होता तो फरिश्ते सबसे ऊपर नजर आते। आप ये सब छोड़ दीजिए। अगर आप बुजुर्गी को मेयार बना रहे हैं, भाई कहना है ना सबका कि भाई बुजुर्ग थे इसलिए खलीफा मुअय्यन कर दिए गए, उनसे बुजुर्ग कोई था ही नहीं कि जिसे खलीफा बनाया जाता बाद रसूल। हमने आदम को इल्म अता किया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का पहला नबी बगैर इल्म के नहीं आया। और क्या अल्लाह का पहला नबी बगैर इल्म के नहीं आया। तो तसव्वुर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जब उसका पहला नबी बगैर इल्म के न आया तो उसका आखिरी नबी बगैर इल्म के कैसे आ सकता है? करीब है ना, करीब है। हमने आदम को इल्म अता किया, पहला नबी, पहला बशर, पहला आदमी, पहला आदिम बगैर इल्म के ना आया। तो जो फखरे मुरसलीन है, जो नबियों का सुल्तान है, अगर वो आ रहा है तो क्या वो बगैर इल्म के आएगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बगैर इल्म के आए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को हिदायत देना है, पूरी दुनिया को इल्म से सरफराज हासिल करवाना है। और जो इल्म के बारे में बता रहा हो कि इल्म हासिल करो मिनल महद इलल लहद, माँ के आगोश से कब्र की लहद तक, जो इल्म के बारे में बता रहा हो, क्या उसके पास इल्म मौजूद ना होगा? बेशक नबी आखिर के बाद कायनात का हर इल्म मौजूद था। और अल्लाह ने इस आयत के जरिए मुनाफिकों के चेहरे पे जो पर्दा लगा था वो पर्दे को हटा दिया और दुनिया वालों के सामने रख दिया। कभी ऐसा ना सोचना कि मैं कभी एक नबी के लिए कुछ करूं और दूसरी नबी के लिए कुछ करूं। क्यों? क्योंकि मेरा कानून है लम तजदा अला सुन्नतिल्लाह तब्दीला, कि अल्लाह के सुन्नत में, अल्लाह के कानून में कभी तब्दील नहीं आती। अगर एक नबी आलिम होगा तो मेरा सारे नबी आलिम होंगे। सारे नबी को अल्लाह ने आलिम बनाकर दुनिया में भेजा। एक वाहिद मंजिल है, अगर गौर किया जाए और फिक्र किया जाए तब इंसान को समझ में आएगा कि मंजिल खिलाफत की मंजिल का हकदार कौन है, कौन से बात है कि जिसको खलीफा बनाया जा सकता है। आप देखें कि नबी आखिर वो हस्ती है कि जो कायनात में इल्म पहुंचाने के लिए आए, और जब आए हैं और सबसे पहली तौहीद का जलसा लोगों के सामने किया, तौहीद पहुंचाने के लिए, नबूवत को पहुंचाने के लिए, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है, ये जब बताना हुआ 40 साल तक रसूल खामोश रहे, अमीन और सादिक बनवाया। जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ चुका, लोग बिल्कुल उनको अपना मानने लगे, उन पर भरोसा करने लगे, अपने से ज्यादा भरोसा करने लगे। और भरोसा भी ऐसा कि नबी ने कहा था कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो, कि या रसूल अल्लाह इतना भरोसा करता हो कि अगर आप कह दें कि पहाड़ उस पार फौज है, अब हम जाकर देखें और फौज मौजूद ना हो तो हम ये मान लेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि आपने झूठ बोला। यानी अपने आप को अमीन और सादिक इस अंदाज से बनवाने के बाद फिर तौहीद और नबूवत को पहुंचाया, और नबूवत को पहुंचाया। जैसे तौहीद और नबूवत को पहुंचाया और पीछे सपोर्ट में किसको लिया? भाई कोई भी आदमी कोई प्रोग्राम करना चाहता हो, और सबसे बड़ा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जिससे पहले कभी हुआ ही नहीं है, पूरी दुनिया खिलाफ है
सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप जुलूस निकालें और जुलूस भी ऐसा हो और ऐसी कंट्री में हो, ऐसे एरिया में हो कि जहां मुखालिफीन भरे हुए। मिसाल दे दो, जैसे आयतुल्लाह सैयद अली खानदानी साहब का जुलूस पूरी दुनिया में निकाला गया। कुछ खित्तों में ऐसा हुआ, कुछ इलाकों में ऐसा हुआ, लोगों ने निकालना चाहा लेकिन निकल ना सका। क्यों? बैक सपोर्ट नहीं था, मजबूती नहीं थी। इसका मतलब जहां बैक सपोर्ट होता है, जहां मजबूती नजर आती है, वहां पर कोई भी प्रोग्राम हो इंसान अच्छे तरीके से करता हुआ नजर आता है। अब नबी आखिर को इतना बड़ा प्रोग्राम करना है कि जिसके लिए पूरा मक्का मुखालिफ है, पूरे मक्के में कुफार भरे हुए हैं, मुशरिक भरे हुए हैं, एक भी मुसलमान नजर नहीं आ रहा है। और वहां पर इतना बड़ा जलसा, तौहीद का जलसा नबी आखिर को करना है। तब नबी आखिर को कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए था, भाई बैक सपोर्ट चाहिए था, कोई ना कोई सरपरस्त चाहिए था। अब नबी आखिर क्या करते? नबी आखिर आए जनाब अबू तालिब के पास। अब आने के बाद कहा, ऐ चचा अबू तालिब, आप ही वो हस्ती है कि अगर आप मेरे साथ हो जाए तो मैं तौहीद का जलसा कर दूं। तौहीद का जलसा मंजर आम पर कर दूं। जनाब अबू तालिब बैक सपोर्ट में खड़े हुए। आने के बाद नबी आखिर के साथ खड़े हुए और तौहीद का जलसा 2 दिन के बाद तीसरे दिन कामयाब होता हुआ नजर आया। नबी आखिर ने तौहीद भी पहुंचाया और नबूवत भी पहुंचाई। किसके जरिए? जनाब अबू तालिब के जरिए। देखिए तारीख में 2 हस्तियां हैं, 2 किरदार नजर आए तारीख में। कुरान के जरिए किताब दे रहा हूं, 2 किरदार हैं, एक जनाब आसिया और एक नूह की बीवी। 2 औरतें हैं और दोनों औरतों का 2 किरदार है। इसमें एक जवाब है, इसलिए मैं आपको कुरान करीम के जरिए से किरदार दिखा रहा हूं। एक जनाब आसिया कि जिसके लिए कुरान का चाले थे कि मसला ज़रबा मसला लिल्लज़ीना आमनू इमरात फिरऔन, कि हमने फिरऔन की बीवी को मोमिनों के लिए नमूना बना दिया है। फिरऔन की बीवी को, फिरऔन कौन? जो काफिर है, जो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है, खुदा कह रहा है, उस फिरऔन की बीवी के लिए कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि ज़रबा मसला लिल्लज़ीना आमनू इमरात फिरऔन, कि हमने फिरऔन की बीवी को मोमिनों के लिए नमूना बना दिया है काफिर की बीवी, मगर मोमिनों के लिए नमूने अमल बन रही है। और दूसरी औरत के लिए फिर कुरान इरशाद फरमा रहा है कि ज़रबा मसला लिल्लज़ीना कफरू इमरात नूह, कि देखो हमने नूह की बीवी को काफिरों के लिए नमूने अमल बना दिया है। भाई काफिर की बीवी मोमिनों के लिए नमूने अमल, और की बीवी आसिया काफिर की बीवी मोमिनों के लिए नमूना अमल बन रही है। और जो मोमिन की बीवी है, जो नबी की बीवी है, वो काफिरों के लिए नमूना अमल बन रही है। अल्लाह क्या बताना चाहता है? अल्लाह समझाना चाहता है, अल्लाह पैगाम देना चाहता है कि देखो हम जो मेयार बनाते हैं वो रिश्तेदारी का मेयार नहीं बनाते, बल्कि किरदार का मेयार बनाते हैं। अगर किरदार खराब हो तो नूह की बीवी भी काफिरों के लिए नमूना बन जाती है, और किरदार अच्छा हो तो काफिर की बीवी भी मोमिनों के लिए नमूना बन जाती है। निगाह है कुदरत में, निगाह है कुदरत में। किरदार को अल्लाह ने मेयार बनाया, अजमत के लिए किरदार को मेयार बनाया। किरदार अच्छा हो तो काफिर की बीवी भी है तो मोमिनों के लिए नमूना बन जाती है, और किरदार बुरा है तो नबी की बीवी ही क्यों ना हो
बड़ा पैगाम कुरान करीम ने दिया। नबी की बीवी ही क्यों ना हो, किरदार बुरा है तो काफिरों के लिए नमूने अमल बन जाती है। गौर ये करना है कि किरदार किसका अच्छा, काफिर के घर में रहकर, कमाल देखे ऐसा, काफिर के घर में रहकर कौन ऐसा होगा कि जो काफिरों के यहाँ रहे और रहने के बाद अपने ईमान को बचा के रख ले। और ईमान भी ऐसा कि अल्लाह के सामने खड़ी होकर कह रही है कि परवरदिगार जन्नत में घर दे दे। आप तो जनाब आसिया का चाहे और ऐसा होगा, काफिर के घर में है, काफिर की बीवी है, लेकिन ऐसा ईमान को बनाकर रखा, ऐसे ईमान को सजा के रखा कि उनको पता है कि अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा मांगा भी तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगी। मैंने कहा बुलंद परवाज अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मैंने खुतबे में बताया था ना, ईद के खुतबे में, कि अल्लाह बुलंद परवाज को ज्यादा पसंद करता है, यानी आला सोच हमेशा रखना चाहिए। क्या कहा जनाब आसिया ने, परवरदिगार जन्नत में घर दे दे। जरा आप गौर कीजिएगा कि आसिया ने जन्नत में घर मांगा, क्यों घर मांग लिया? ईमान साबित किया किसी ने आसिया का? ईमान साबित कोई किसी ने किया? क्या नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब कुरान कह रहा है, जब कुरान कह रहा है कि ज़रबा मसला लिल्लज़ीना आमनू इम्रात फ़िरऔन, कि मैंने फ़िरऔन की बीवी को मोमिनों के लिए नमूना बना दिया है, तो अब ईमान की बात ही नहीं करता। तो कुरान कह रहा है तो अब लोगों को समझना चाहिए था कि जो काफिर के घर में रह के ईमान को बचा ले, तो जो मोहम्मद मुस्तफा के साथ रह जाए उसका ईमान कैसे खतरे में? मोहम्मद जैसे नबी के साथ रह रहा हो, जो ईमान लोगों तक पहुंचा रहा है, उसका ईमान खतरे में नहीं हो सकता। आसिया ने कहा परवरदिगार जन्नत में घर दे दे। अल्लाह ने कहा बेशक जरूर दूंगा। परवरदिगार क्यों देगा? कहा क्यों ना दूं? मैंने कहा परवरदिगार क्या नमाज पढ़ी आसिया ने? भाई मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, क्यों? कहा इसलिए कि नमाज पढ़ो अल्लाह जन्नत देगा, रोजा रखो अल्लाह जन्नत देगा, चलो हज करके आते हैं अल्लाह जन्नत देगा, जिहाद करो अल्लाह जन्नत देगा। मैं कहूंगा परवरदिगार आसिया ने कौन सी नमाजें पढ़ी जो जन्नत में घर दे दिया? कौन सा रोजा रखा जो जन्नत में घर दे दिया? कौन सा हज कर लिया जो जन्नत में घर दे दिया? कौन सी ज़कातें निकाल दी कि जन्नत में घर दे दिया? कौन सा बैतुल्लाह का तवाफ करके आ रही है कि जो जन्नत में घर दे रहा है? कहा कि ना आसिया ने नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दिया, निगाहे कुदरत में जन्नत का हकदार असल में वो है कि जो नबी को परवान चढ़ा दे, जो नबी को पाल दे। इसलिए कि अगर नबी को पाल रहा है, जब नबी को पाल रही है, अब इसको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, हज करने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार क्यों? कहा यही तो नमाज है, जिसको पाल रही है यही तो नमाज है, यही तो रोजा है, यही तो हज है, यही तो ज़कात है। अब आसिया को कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूसा जैसे नबी को पाल दिया, अल्लाह ने जन्नत में घर दे दिया। अब सोचो जो फखरे मुरसलीन को पाल दे, वो अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफा जैसे को पाल दे, क्या उसे ईमान साबित करने की जरूरत है? क्या उसको रोजे रखने की जरूरत है? कि मुसलमान कहेंगे रोजा मैंने नहीं देखा, कभी रखा, मैंने नहीं देखा कभी नमाज पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जो गोद में ईमान को पाल रहा हो, जो गोद में ईमान को पाल रहा हो,
اس کو اپنا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور قرآن کی یہ آیت میں نے بتائی ذرا فرعون کی بیوی کو قرآن نے مومنوں کے لیے مومنہ بنایا. تو یہ آیت صرف جناب آسیہ کے لیے نہیں بلکہ یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے. اب غور کریں اور یہ ذہن میں رکھیں جو آیت آسیہ کے لیے آئی اسی آیت کی صرف جناب ابو طالب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان پر مت پڑو بلکہ ابو طالب وہ ہستی کا نام ہے, اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا خود ایمان لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا ہے, ایمان ثابت کرنا ہے تو ابو طالب کے ایمان پر عمل کرنا پڑے گا. جو فریضہ بتایا اس کو ماننا پڑے گا. اچھا کمال آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب نے جنت میں کچھ نہیں مانگا. آسیہ نے تو گھر مانگ لیا تھا, پروردگار جنت میں گھر دے دے. اللہ نے کہا بے شک ضرور دوں گا. کیوں دوں گا؟ کیونکہ تم نے میرے نبی کو پال دیا. جب میرے نبی کو پال دیا میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کر دوں گا, جنت میں گھر دے دوں گا. لیکن ابو طالب نے یہ تاریخ میں اپنے پڑھا ہوگا, کہیں بھی آپ دکھائیے کہ جناب ابو طالب نے کہا ہو کہ پروردگار مجھے جنت میں چھوٹی سی کوٹھی دے دے. نہیں کہا کہ چھوٹا سا مقام ہی دے دے یا کوئی بڑا مقام دے دے. پوری تاریخ پر جائیے, پوری تاریخ میں کہیں بھی جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں گھر دے دے. ذہن میں آئے گا نا کہ جب آسیہ نے مانگا تھا موسیٰ کو پال کے تو جناب ابو طالب نے کیوں نہ مانگا؟ سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ جب آسیہ نے مانگ لیا ابو طالب نے کیوں نہ مانگا؟ اچھا ابو طالب نے نہیں مانگا ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ آسیہ نے تو مانگ لیا جنت مل گیا, اللہ نے کہہ دیا بے شک جنت ہوگا. اب ابو طالب نے کچھ نہیں مانگا, اب ابو طالب کو کیا ملے گا؟ دنیا والے نہیں پریشان ہے کہ ابو طالب کو کیا ملے گا. ابو طالب نے کچھ مانگا ہی نہیں, ملے گا کیا؟ اب دیکھیے ایک مثال یہاں پر جب میں آتا ہوں تو ایک مثال یہ ضرور دیتا ہوں کہ ایک والد کے دو بیٹے, دو فرزند. اب والد نے کہا, باپ نے کہا, ابھی امتحان کا زمانہ گزرا ہے نا, چند دن ہو رہے ہیں امتحان کا زمانہ گزرا. باپ نے کہا کہ بیٹو تم لوگ خوب محنت کرو, اچھے سے پڑھو. اور باپ کہتا خوب محنت کرو, اچھے سے پڑھو اور اچھا نمبر لاؤ. ہاں یاد رکھنا اگر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے, بہتر مقام لائے, اعلیٰ مقام لائے, رزلٹ بہتر رہا تو ہم تمہیں انعام دیں گے. اور کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھلا کہتے ہیں کہ بیٹا تم محنت کرو اور پیسہ جو کہو گے ہم تمہیں وہ دے دیں گے. کیوں کہتا ہے بات؟ تاکہ بیٹا اسی بہانے خوب محنت کرے اور ایک بہترین رزلٹ لے کر آئے. ابھی بھی کسی نے کہا نہیں ہوگا گھروں میں بچوں محنت کرو, والا بات ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ دی ہو, لیکن کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹا محنت کرو, اچھا نمبر رہا, جو مانگو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. ایک والد کے دو بیٹے, والد نے دونوں بیٹوں سے یہی جملہ کہا کہ اگر اچھا نمبر آیا, فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے تو تم جو مانگو گے وہ ہم تمہیں دے دیں گے. اور بیٹوں نے خوب محنت کی. اب لالچی صحیح, انعام کے غرض سے ہی صحیح, خوب محنت کی. اب محنت کرنے کے بعد جب رزلٹ سامنے آیا تو اچھا نمبر, فرسٹ ڈویژن, دونوں بچے 95% لے کر آئے دونوں بچے. اب دونوں بچے رزلٹ لے کر باپ کے خدمت میں پہنچ گئے. بابا یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جیسے ہی باپ نے دیکھا آپ خوش ہوا, کیوں نہ خوش ہو, تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ بچے کا نمبر زیادہ آ جائے. لیکن معاملہ یہ ہے
इन्होंने एक वादा भी किया है कि जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। अब दोनों बच्चे रिजल्ट लेके पहुंचे, बाप ने रिजल्ट देखा, देखने के बाद अब बाप का फरीजा क्या बनता है कि वो बच्चों से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। बाप ने पूछा कि बेटो अच्छा नंबर तुम लाए हो, अच्छे नंबर से पास हुए हो, बहुत मेहनत की है, क्या चाहिए बताओ, जो कहोगे वो तुम्हें दे दिया जाए। एक बेटा था, उसने कहा वालिद साहब ऐसा करें कि एक साइकिल खरीद के दे दीजिए, क्योंकि स्कूल जाने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, साइकिल होगी तो आराम से स्कूल चले जाएंगे। अब आप बताइए अगर बाप ने वादा किया है तो वहां पर साइकिल देगा कि नहीं देगा? भाई देगा ना, साइकिल देगा। बाप ने साइकिल दे दिया। दूसरे बेटे से कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, और मैं वहां तक लेके आ गया जहां लेके आना। दूसरे बेटे से कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा कि बाबा जो आपकी मर्जी वो दे देंगे। पहुंचे एक ने साइकिल मांगा और एक ने कुछ ना मांगा। अब जिसने साइकिल मांगा ऐसा साहब पहुंच गए, जिसने साइकिल मांगा उसका बाप उसको उसकी हैसियत के मुताबिक देगा, और जिसने कुछ ना मांगा उसको अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। जिसने साइकिल मांगा उसको उसके हैसियत के मुताबिक देगा, और जिसने कुछ ना मांगा उसको अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। अब आसिया ने जन्नत में घर मांग लिया, अल्लाह ने जन्नत में घर दे दिया। अबू तालिब ने कुछ ना मांगा, इसलिए अल्लाह ने कहा ऐ अबू तालिब आ तेरा रजब को मेरे घर ले जाओ। अबू तालिब ने कुछ ना मांगा, अल्लाह ने आसिया को जन्नत में घर दे दिया और अबू तालिब को अपना घर दे दिया। अबू तालिब उस हस्ती का, अबू तालिब को अपना घर ही दे दिया। अब आप देखें कि अबू तालिब ने क्यों ना मांगा। एक तो रास्ता पता चला कि अल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक जब देगा, भाई मानते हैं अल्लाह की हैसियत कुछ भी दे सकता। आसिया ने अपने हैसियत के मुताबिक मांगा, घर दे दिया। अबू तालिब ने कुछ ना मांगा, अल्लाह अपने हैसियत के मुताबिक दे रहा है। और आप दूसरी मंजिल पे आए, आसिया ने जन्नत में घर मांगा। क्यों घर मांगा? सवाल इस पे भी होता है कि जन्नत में घर क्यों मांगा, जन्नत में मकान क्यों मांगा? उसकी वजह यह है कि आसिया थी काफिर के घर पर। आसिया थी काफिर के घर पर। आसिया को पता है कि मेरा घर और है और जन्नत और है। काफिर का घर है तो आसिया को पता है कि ये घर और है और जन्नत और है। अरे अबू तालिब भी जन्नत में घर क्यों मांगते? अबू तालिब को भी तो पता है कि जो मेरा घर है वही जन्नत है। तो उनको जन्नत में मुकाम मांगने की जरूरत नहीं है। और कमाल देखे ना, कमाल देखे कि अबू तालिब क्यों घर मांगे जन्नत में। भाई इनके चाहने वाले, अली के चाहने वाले, इनके बच्चे के बारे में जन्नत में सरकार, ये जन्नत में घर क्यों मांगे? इनके चाहने वाले जन्नत बना कर बेच रहे हैं। बहलोले दाना, कौन ऐसा शख्स होगा, कौन ऐसा दाना होगा कि जो बहलोले दाना को ना जाने? भाई जन्नत बना कर बेच रहे हैं, दुनिया में जन्नत बना कर बेच रहे हैं। और तारीख अगर पढ़े बहलोले दाना की, जहां जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, जिस चौराहे पे जा रहे हैं, अली 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 कर रहे हैं, अहले बैत का कसीदा पढ़ रहे हैं। हारून बड़ा परेशान,
देखो जाता है, जहाँ देखो अली अली करता हुआ नजर आए। आप बाबर को सुनता ना, इसमें परेशानी होती है अली अली के नाम से। तो कहा कि जहाँ देखो ये जाता है अली अली करता है। हारून बड़ा परेशान। एक दिन बोला हारून बहनों से, मेरे खातिर ये दीवानगी छोड़ दो। शहर बगदाद के हर वसी चौक पर जिक्र औलाद आले नबी छोड़ दो। शहर में ताज में तख्त में और सादात की नौकरी छोड़ दे। मुझसे बेशक सदारत की कुर्सी मिले, पर ये सादात की नौकरी छोड़ दे। बहनों ने कहा छोड़ दूंगा मैं सादात की नौकरी, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ दे। मेरा काम जन्नत में घर बेचना, इससे अच्छा कोई नौकरी ढूंढ दे। इससे अच्छी कोई नौकरी ढूंढ दे। बड़ा परेशान हारून, ये तो इसको समझाई ना नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। जहाँ देखो अली का कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है। और जब ज्यादा कोई परेशान होता है ना किसी से, तो वो मुंह से उसके निकल जाता है, यार अच्छा होता मर जाता। कही देता कि अच्छा होता मर जाता। जब मर जाता बवाली खत्म हो जाता, ना वो रहता ना कोई बवाल सर पे रहता। तो हारून ने मजाक में बहलोल के सामने कह दिया। बहलोल के सामने कहा, सोचा कि मजाक में कह रहे हैं, मरेंगे थोड़ी ना। तो मजाक में कह दिया कि बहलोल अच्छा होता तुम मर जाते। जैसे बहलोल ने सुना अली के दीवाने, कहा कि अच्छा हारून तू चाहता है मैं मर जाऊं? कहा बहलोल मैं चाहता हूं तुम मर जा। जैसे ही सुना बहलोल ने, वहीं पर फौरन लेट गए। और लेटने के बाद एक चादर मंगाई और चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ के लेट गए। हारून सोच रहा मजाक कर रहे हैं, भाई मजाक में कहा है, यूं ही लेट गए हैं, इनकी मजाक करने की आदत है। दीवाना करते थे ना, दीवाने में कुछ ये हरकत कर रहे हैं, मजाक समझ रहा था। जैसे ही चादर ओढ़ के लेटे, कुछ देर हो गया, कुछ देर गुजर गई, लोगों ने आवाज दी बहलोल। जैसे आवाज दी, ये सब दरबार में हो रहा है, हारून तख्त पे बैठा हुआ है, दरबार में ये सब कारनामा अंजाम दिया जाए। प्रधानमंत्री है ना, ऐसे चौराहे थोड़ी ना कोई से बात करेगा, मतलब कोई से मार दे। कुछ भी फैसला करना था, कुछ भी हुक्म देना हो, दरबार में बुलाया जाता। क्यों? चारों तरफ सिपाही मौजूद थे। तो दरबार में ही बहलोल चादर ओढ़कर लेटे। जैसे ही लेटे आवाज दी, बहलोल उठो उठो उठो। बहलोल उठे नहीं, क्योंकि हो तो उठे। बहलोल खत्म, इस दुनिया से चल बसे बहलोल। हारून अब तक से उठा, बोला नहीं उठा, हम चले। तब से उठा, उठता हुआ लौटा हुआ आया और शाना पकड़ के हिला रहा है। चादर पहनाया और शाना पकड़कर हिला रहा है। अगर बहलोल को चल बसे, बहलोल तो जिंदा थे ही नहीं कि उठ के आवाज दे। अच्छा जब देखा कि बहलोल मर गए, तो हारून परेशान हो गया। बैठे बैठे मुसीबत सर पे आ गई। हमने तो मजाक में कहा था कि बहलोल मर जाओ, ये तो सीरियस में मर गए। तो सर पे मुसीबत बैठे बैठे आ गई। पूरे दरबारी देख रहे हैं, जवाब क्या दिया जाए। बहरहाल हुक्म दिया कि जाओ भाई, गुस्ल का इंतजाम करो, कफन का इंतजाम करो, इनको दफनाओ। मरने के बाद क्या किया जाए? इनको दफनाओ। पहले तो एक आकिल ने कहा कि हुजूर एक ऐसा काम करो कि एक तबीब को बुला लें। हो सकता है कि हमने कोई पहचान ना पाए, लेकिन ये जिंदा हो। नाटक करके लेटे हुए जैसे खुराफाती भी बुला के तबीब को बुला के चेक करवा लीजिए, डॉक्टर बुला के चेक करवा लीजिए। हारून ने तबीब को बुलाया। तबीब जब आया तो उसने चेक किया और फिर उसका देखी तो खत्म। कहा कि नहीं ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ था भाई, ये ना कहीं से गिरे हैं ना कहीं चोट नजर आ रही है, क्या हुआ था, कैसे मरे? कहा कि नहीं, इन्होंने कहा मर रहा हूं और मर गए। बस कहा और मर गए। वो कफन का इंतजाम किया गया, कफन खड़ा गया और बहलोल को गुस्ल देने के बाद कफन पहना
बहलोल मर चुके हैं, जिंदा नहीं है कि पानी पड़े और वो मर चुके हैं। गुस्ल दिया जा चुका, कफन पहनाया जा चुका, अब ताबूत में लेटाया गया। जब लेके इनको दफना दिया गया, कब्र खोदी गई बहलोल के लिए। अब चारों कांधे पर बहलोल को लेकर, बहलोल की मैयत को लेकर निकले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते पढ़ते लोग पढ़ते पढ़ते कब्रिस्तान की तरफ चले जा रहे हैं। जाने का दस्तूर सबको पता है, जब मैयत जाती है आगे आगे होती है, और तशय्युए जनाजा हमेशा पीछे पीछे नजर आते हैं। बहलोल आगे आगे है, बहलोल की मैयत आगे आगे और लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब कब्र के पास पहुंचे और जैसे ही चाहा कि बहलोल को कब्र में लेटाया जाए, कब्र में जैसे ही उतारा बहलोल उठ खड़े हुए। कब्र में जैसे ही लेटाया उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो फौरन वहां से भागे। अरे ये क्या बात है, ये तो मर गए थे, ये कैसे जिंदा हो? डरते हुए कांपते हुए तोड़ते हुए भागे दरबार में। हारून नहीं आया हुआ था, बहुत से डर लगता था ना, वो नहीं आया हुआ था, जनाज़े में नहीं जाता था। हुक्म दिया, लोग लेके गए। जैसे ही बहलोल उठे हैं, अब दस्तूर बदल गया। जाने का दस्तूर ये था कि बहलोल आगे आगे थे और लोग पीछे पीछे थे। अब आने का दस्तूर ये हो गया कि लोग आगे आगे हैं और बहलोल पीछे पीछे कफन में लिपटे हुए चले आ रहे हैं दरबार की तरफ। दरबार में लोग दौड़ते हुए आए, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए। हारून बैठा हुआ था अपने तख्त के ऊपर। जब लोगों को देखा, लोग बौखलाए हुए हैं, लोग कांप रहे हैं, लोगों की तेवर बदले हुए हैं। तो हारून ने कहा, क्या हुआ? बहलोल को दफना आए? कहा कि नहीं, वो खुद आ रहे हैं, पूछ लीजिए। वो खुद आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या बात है। अच्छा, ये कैसे हो गया? हमें क्या पता ये कैसे हो गया। तख्त पे बैठा हुआ था हारून, जैसे ही बहलोल का कदम कफन से लिपटे हुए, मट्टी लगी हुई कफन में, जैसे दरबार में दाखिल हुए, जो हारून तख्त पे बैठा था जमीन पर आ गया। देखकर जमीन पर आ गया। अरे तुम जिंदा कैसे हो गए? कहा कि ऐ हारून, पहले ये पूछ कि मरा कैसे था, फिर पूछना कि जिंदा कैसे हुआ। अच्छा बता दो कि मरे कैसे थे, फिर बताना जिंदा कैसे हुए। बहलोल ने कहा, जितने मोमिन भी हैं और फरिश्ते भी हैं, सबके सब हुक्म तकदीर भाई है हम। मलकुल मौत नूरी फरिश्ता सही और हुक्म शब्बीर भाई है हम। मलकुल मौत नूरी फरिश्ता सही और हुक्म शब्बीर भाई है। वो भी है जाफरी, हम भी है जाफरी, और ये हुक्म पीर शब्बीर भाई है हम। देखिए क्या बयान कर रहे हैं, और ये हुक्म शब्बीर भाई है हम। बहलोल मरे कैसे थे, जिंदा कैसे हुए? जनाब बहलोल ने कहा कि मेरा मरने का जब दिल किया, बहलोल मरे कैसे थे, जिंदा कैसे हुए? बहलोल ने कहा कि मैंने चाहा मरूं, इन्ना लिल्लाह कहा, मौत से मुझको वाबस्तगी मिल गई। मेरा एक बार जीने का फिर दिल किया, नाम ने हैदर लिया, जिंदगी चाहने वाले जन्नत बना बनाकर बेच रहे हैं, जाओ ले जाओ। वाला मामला है कि हारून की तकदीर बना था जन्नत खरीदना, अगर खरीद लेता मजाक नहीं से मिल लेता, जन्नत मिल जाता। कहाँ मिल गया? मट्टी से बना बनाकर ये जन्नत में कसर, ये कसर है जन्नत का, आओ ले लो।
अकीदा था जनाब रहीम, और लोग भी चाचा के दिल का अकीदा अली वाला था, अली के चाहने वाले थे। आपसे कोई कह दे ये छोटा सा रोज़ा है और अली का रोज़ा है तो खरीद लो, आप कुछ नहीं सोचेंगे, अली का रोज़ा कितना खूबसूरत लगा, चलो खरीद लो। तो अली के चाहने वाले अली के मामला में कभी पीछे नहीं हटते हैं, तो अली भी अपने चाहने वालों के मामला में पीछे कैसे हट सकता है? और जब जब जरूरत रही उस वक्त तक अली लोगों के साथ रहे। आप देखें कि मुसलमान परेशान थे, जहां जहां अल्लाह को खुद होना चाहिए था वहां वहां अल्लाह ने अली को रखा। दुनिया का मुसलमान परेशान है, ये माजरा क्या है? जहां जहां अल्लाह को खुद होना चाहिए था वहां अल्लाह ने अली को रखा। भाई मुसलमान कुरान की तरफ दौड़े, कुरान में अल्लाह को देखे, जैसे पहला पेज छोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बे का नुक्ता नजर आ गया। अब जैसे ही बे का नुक्ता देखा याद आ गया ना नुक्ता तो तहतल बा, ये तो अली है, एक नुक्ते में अली नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुरान को छोड़ा, कुरान को छोड़ने के बाद अब सोचा कि चलो अल्लाह की घर की तरफ दौड़े, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को ढूंढने के लिए अल्लाह के घर की तरफ 1.25 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लगाकर खाने काबा की तरफ मुसलमान दौड़े, चलो अल्लाह के घर को देखिए। अब जैसे घर के पास पहुंचे गिराफ काबा उठा, लोगों ने शक देखा, तेरा रजम याद आ गई, अरे ये तो अली का जाए पैदाइश है, ये तो वही मकाम है जहां अली पैदा हुए। लोग निकले थे अल्लाह को ढूंढने और अली नजर आए, कहा कि छोड़ो साथ छोड़ो, जिंदगी में अल्लाह नहीं मिलता, चलो मर के अल्लाह को देखते हैं। अब जैसे ही मरे और कब्र में पहुंचे, सामने अली नजर आ रहे हैं, सामने अली नजर आ रहे थे। अच्छा, इसकी एक हदीस भी सुना दो। हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर बताया सबको नजर आएंगे, ऐसा नहीं इसके सबको नजर आएंगे। फर्क क्या होगा आप देखें। मौला फरमाते हैं कि कोई मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, मतलब किसी खित्ते पर मरता है दुनिया में, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, मेरे दादा अली को देखता है, मेरे दादा अली को देखता है। मोमिन अली को देख ले उसकी मौत शहद से ज्यादा शीरीन हो जाती है। अब मुनाफिक अली को देख ले उसकी मौत शहद से ज्यादा कड़वी हो जाती है। देखते दोनों हैं, मरते दोनों हैं, मगर फर्क है, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, मेरे दादा अली को देखता है। मोमिन अली को देख ले मौत शहद से ज्यादा शीरीन हो जाती है। मुनाफिक अली को देख ले मौत शहद से ज्यादा कड़वी हो जाती है। चाहने वाला मौजूद था, कहा मौला ये तो मरने के बाद होता है, जिंदगी में कैसे पता चले कि मौत का जायका क्या है? मौला ने कहा कि जिंदगी में लोगों के सामने अली का नाम लेकर देख लो, चेहरे का पोजीशन बता देगा, इनने शहद खाया है या शहर खाई है। शहद खाया, चेहरा खिल जाए तो शहद वाला है, चेहरा बिगड़ जाए तो जहर वाला है। कब्र में जिन गए, चलो भाई अल्लाह को अब मरने के बाद से यहाँ उनके किताबों में चलता नजर आएगा, अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह का दीदार होगा, तो चलो भाई कब्र में चल के अल्लाह को देखते। और जैसे ही कब्र में पहुंचे तो वहां सामने अली नजर आए, साहब जनाब अली नजर आ गया, चलो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह अपने हाथों से कौसर पिला दे, चलो जब कौसर पिएंगे तब अल्लाह को देख लेंगे कि अल्लाह कैसा नजर आता है। अब जब कौसर पीने के लिए गए तो सामने साक़िए कौसर नजर आए, सामने साक़िए कौसर, कहा कि यहाँ भी अली नजर आ गए, अब क्या करें? कहा कि अब एक रास्ता और
जन्नत और जहन्नम का तकसीम करना होगा। अल्लाह सामने बैठा होगा तख्त के ऊपर, अल्लाह सामने बैठा होगा तख्त के ऊपर। हम उस वक्त अल्लाह को देख लेंगे। अब मैदान महशर में पूरी पब्लिक मौजूद है, पूरे मुसलमान खड़े हुए हैं, कुफार खड़े हुए हैं कि हम अब अल्लाह को दीदार करेंगे। जन्नत और जहन्नम जब अल्लाह तकसीम करेगा, हम अल्लाह को देख लेंगे। अब जैसे ही नंबर आया, जैसे ही अपना नंबर आया, सामने क्या देखा? यानी मौजूद है, किसी को कह रहा है जन्नत में तू जा, जहन्नम में तू जा। जन्नत और जहन्नम में अली तकसीम कर रहे हैं। यानी दुनिया जहां अल्लाह ढूंढने पहुंची, वहां अली नजर आए। यानी अल्लाह क्या करना चाह रहा है? अल्लाह अपने सिफात का इजहार करना चाह रहा है। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे मखलूक का बंदे हैं। आप सोचो कि मैंने अपने बंदे, मखलूक बंदे को इस मुकाम पर फायज किया, मैं किस मुकाम पर हूँ। और फिर आखिर में देखिए कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बस यहाँ से एक पैगाम दूंगा और ले लो 50 मिनट। खलक़ल मौत वल हयात, कुरान में क्या चैलेंज कि मौत और हयात को अल्लाह ने खल्क किया। खलक़ल मौत वल हयात क्यों किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं देख सकूं कि तुम में से कौन ऐसा है कि जो बेहतरीन अमल करने वाला है, अहसन अमल करने वाला है। यानी मौतो हयात मखलूक है और अहले बैत मौतो हयात से पहले के मखलूक है। यानी जब मौतो हयात ना थी तब अहले बैत कराम थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ना ये जिंदगी की वजह से जिंदा है, ना मौत की वजह से मुर्दा है। जब मौत ना थी तब मौजूद थी, जब जिंदगी ना थी तब मौजूद थी। इसका मतलब ना जिंदगी की वजह से जिंदा है, ना मौत की वजह से मुर्दा है। इसीलिए अली का चाहने वाला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कि जिसे दुनिया वालों ने सोचा था कि बारूद से मार दो, बम से मार दो, खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अली का चाहने वाला वो होता है कि जिसका मौला मरने के बाद खत्म न हुआ, उसके चाहने मरने के बाद कैसे खत्म हो सकते हैं। कुरान कह रहा है कि जो भी राह खुदा में मर गया उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। लोगों ने कुरान की मुखालिफत की, कुरान को ना माना, वो क्या जाने कि वो तो हयात क्या है। अल्लाह कह रहा है जिंदगी वो नहीं है जिसे तुम समझते हो, जिंदगी वो है जो मैं बताना चाहता हूँ। तुम्हारे दरमियान जिंदगी उस चीज का नाम है कि जब तक सांस है, मौत उस चीज का नाम है कि सांस खत्म हुई, मौत के आगोश में चले गए। तुम्हारे निगाह में सांस का आना और जाना मौत तो हयात है, मगर हमारे दरमियान जिंदगी की असल अहमियत यह है कि इंसान चला जाए, उसका मकसद बाकी रहे। हमारे दरमियान इंसान चला जाए, उसका मकसद बाकी रहे, लोग उससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। हमारे साथ चले गए, आज भी इस्तेफादा हासिल किया जाता है, उनके पैगामात पर अमल किया जा रहा है, उनके मसाइल पर आज भी अमल किया जा रहा है। ये अमल करना इस बात की अलामत है कि वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। लिहाजा ऐसे लोगों का हमें दामन था जिसका मौला भी इस दुनिया से जाने के बाद मुर्दा नहीं, आपके चाहने वाले इस दुनिया से जाने के बाद मुर्दा, बस मुकाम बदल जाता है, जिसको इंतकाल कहा। इंतकाल मतलब मुंतकिल होना, एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर चले जाना। मैं यहाँ हूँ, यहाँ से घर चला गया, ये तो अकेले इंतकाल है, किसी को इंतकाल कहा।
ظاہری معنی وہ دیتے ہیں جو یہاں سے بہرحال ایک مقام سے دوسری مقام تک جانے کو انتقال کہا جاتا ہے۔ کوئی بڑی شے کا نام نہیں ہے جس سے انسان ڈرے، گھبرائے، پریشان ہوتا ہے۔ مجھے کہتا ہوں کہ زندگی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان پریشان ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، بھائی بدن کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہم سے جو منسلک ہے ان کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پریشان تو ہم پریشان تو ہمارا جسم پریشان ہوگا، لیکن مرنے کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جائیں، کوئی ٹینشن، کوئی ہیڈیک، کوئی پریشانی نہیں رہتی، بالکل آسانی فراہم ہو۔ یعنی انتقال کوئی بری شے کا نام نہیں، سب سے بہتر شے کا نام، ایک نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے موت کی شکل میں ہمیں دی گئی۔ اگر اس کو نعمت نہ مانا جائے تو پھر آدمی یہاں پر پریشان ہوتا ہوا نظر آئے اور یہ دعا کرتا ہوا نظر آئے گا، پروردگار مجھے اٹھا لے۔ وہ وقت آئے گا کہ انسان دعا کرے گا، پروردگار مجھے اٹھا لے، میں اٹھا گیا ہوں دنیا کی پریشانی۔ یہ نعمت کا نام ہے موت، یہ زندگی کا نام ہے موت۔ لوگوں نے موت کی اصل حقیقت کو سنی، ایک زندگی کا نام، انسان یہاں سے آج بڑھ گئی وہاں پر بیدار ہو گئی۔ ایک زندگی کا نام، ایک بہتر زندگی کا نام، زندگی جس طریقے سے کرنا انجام ہے، موت اس طریقے سے انسان سے بہتر نظر آتی ہے۔ اور سارے ثواب جیسا کہ زیدی صاحب ہمارے درمیان سے گئے ہیں، کئی سال گزر گئے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ آج بھی لگتا ہوگا، آپ کو احساس ہوتا ہوگا، ان کی باتیں یاد آتی ہیں، ان سے ملنا یاد آتا ہوگا، ان سے ہاتھ ملانا یاد آتا ہوگا، ان سے مسافہ کرنا یاد آتا ہوگا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا یاد آتا ہوگا، ان کے ساتھ روزہ رکھنا یاد آتا ہوگا۔ آپ بھولے نہیں ہوں گے، اتنے سال گزر گئے، آپ نہیں بھولے۔ کیوں نہیں بھولے؟ وہ چلے گئے لیکن ان کا کردار نہیں گیا، وہ چلے گئے، ان کا کردار آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آج بھی یاد رکھے ہوئے ہے، اور مجلس برپا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی اپنے مرحوم کو بھولا نہیں، اپنے مرحوم کو بھولا نہیں ہے، یاد رکھے ہوئے، ان کی یاد زندہ ہے، ان کی یاد تر و تازہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ آپ سوچیں کہ جب یہ مولا کا علی نظرات، اب مرتبہ یہ ہے کہ ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے اوجھل ہوئے، ایک پردہ پڑا ہے، ختم نہیں ہوئے۔ آپ سوچیں کہ مولا جب اس دنیا سے گئے تو کیا ہمارے درمیان سے یہ ختم ہو جائے؟ اسی لیے 14 صدیوں سے یہ غم جاری و ساری ہے، 14 صدیوں سے مصائب اسی طریقے سے تر و تازہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا ظاہری طور پہ گئے ہیں لیکن ان کا غم ابھی بھی تر و تازہ نظر آتا ہے، ان کی باتیں ابھی بھی یاد آتی ہیں، ان کا دور ابھی بھی یاد آتا ہے کہ نرغے آداب امام حسین گھرے ہوئے تھے، آوازیں استغاثہ بلند کر رہے تھے، ہر من ناصر انصرنا، ہر من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ عزادارو، مولا کے جملے پر غور کرو، جو کائنات کا مولا ہے، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، ایسے دور میں آیا، ایسے تو لوگوں کے سامنے کھڑا ہے کہ امام حجت کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ امام حجت تمام کی لوگوں کے سامنے لوگوں کے تصورات کو رکھا، لوگوں کے تصورات کو کیسے رکھا؟ یہ کہہ کے رکھا کہ اگر میرے چاہنے والے ہو تو میرا ساتھ دو، اگر میرے مخالف ہو تو دور ہٹ جاؤ۔ کربلا میں یہی دیکھا گیا نا، کربلا میں یہی دیکھا گیا، ایران میں یہی دیکھا گیا کہ ایران کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا، ایران کے لوگوں کو شہید کیا گیا، بم مارا گیا۔ یہی مقام تھا کربلا کے میدان کا کہ امام ایک طرف موجود تھے، پورا قافلہ
کہا وجہ کیا تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ مبتل ابیک، ہم تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی ولی اللہ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں غدارو، جب آواز استغاثہ دی اب کوئی آگے نہ بڑھا۔ تاریخ نے لکھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ اب گرانے کے بعد زبانی سے کہا اے بابا، ابھی آپ کا بیٹا علی اصغر اس دنیا میں زندہ ہے اور جب تک علی اصغر ہے آج نہ آنے دے گا۔ علی اصغر نے جھولے سے گرایا۔ امام حسین سمجھ گئے، علی اصغر کو کلیجے سے لگانے کے بعد میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد علی اصغر جام شہادت نوش کی علی اصغر نے، گلے پر تیر کھائی علی اصغر نے۔ علی اصغر جب شہید ہو گئے اس کے بعد تاریخ نے کہا کہ امام نے پھر آواز استغاثہ بلند کی۔ اب جو آواز استغاثہ بلند کی، تاریخ نے دیکھا کہ جنات کا لشکر چلا رہا ہے، جنات کا لشکر چلا رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، جعفر جن کہتے ہیں مولا بھی حکم دے میں لعینوں کو ختم کر دوں۔ امام نے کہا اے جعفر، اے یہاں سے چلا جا، یہاں سے چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا مولا جب مدد نہیں چاہیے تھی تو آواز کیوں دی؟ امام نے کہا جعفر، میں کائنات کے لوگوں کو، میں کائنات کے مسلمانوں کو، میں کائنات کے انسانوں کو اپنی حجت دکھا رہا ہوں، اپنا مقصد دکھا رہا ہوں، اپنی سرحد دکھا رہا ہوں کہ میری حکومت کہاں تک ہے۔ اے جعفر واپس چلا جا۔ جعفر واپس چلے گئے۔ وہ وقت آیا کہ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے، جنگ کرنے کے بعد امام کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، تلوار چلایا گیا، نیزے مارے گئے، ارے تیروں سے وار کیا گیا۔ میرا امام ارے زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے۔ گھوڑے پہ نہ سمجھا، زمین پر آیا، زمین پر نہیں مگر تیروں پر معلق ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ ظلم ختم نہ ہوا، ارے شمر آگے بڑھا، امام کے سینے پر سوار ہوا، امام کے گلے پر خنجر رکھا، اپن خنجر رکھا، رکھنے کے بعد ارے خنجر کو چلانا شروع کیا۔ جیسے خنجر کو چلایا، ارے 72 قدم کے فاصلے پر ارے ان کی بہن زینب ارے سب منظر دیکھ رہی، بھائی کا گلا کٹ رہا تھا، بہن بھائی کے گلے کو ارے کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ارے جناب زینب نے کہا اے شیر، ارے میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کر مارا ہے۔ ہاں زادارو، ظلم ختم نہ ہوا۔ امام حسین کے گردن کو کاٹا گیا، گردن کو جدا کیا گیا، نیزے پر بلند کیا گیا۔ آزادارو، آپ کے لیے آپ کے تصور میں یہ بات تو ہوگی نا کہ امام کا ایک بیٹا موجود تھا، جناب سید سجاد موجود تھے۔ دیکھیے سب سے بڑا رونا ارے اس وقت آتا ہے کہ کسی بیٹے کے سامنے ارے کسی باپ پر ظلم کیا جائے، ارے کسی باپ کو تھپڑ مارا جائے، کسی باپ کو قتل کیا جائے، ارے بیٹے پر بہت تکلیف گزرتی ہے نا، بہت تکلیف گزرتی ہے، کوئی منظر دیکھ نہیں پاتا۔ ہاں دادارو، سید سجاد نے ارے کیسے منظر دیکھا ہوگا، باپ کا گلا کٹتا ہوا۔ اس کے بعد سید سجاد، ہاں دادارو، ہر بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ باپ کو دفن کرے، ارے باپ کو غسل دے، ارے باپ کو کفن دے۔ ارے جس کا باپ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جس کا والد اس دنیا سے گزر جاتا ہے،
बड़ा एहतमाम किया जाता है ना, अरे गुस्ल में दिया जाता है, कफन में दिया जाता है, अरे कफन में किया जाता है। हाय मजलूम करबला, अरे इतने गरीब बाप, अरे जिसे ना गुस्ल दिया गया, अरे ना कफन दिया गया, ना हुनूत दिया गया। हर एक बेटा मौजूद था, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, अरे गले में खारदार तो इतना मजबूत, न अपने को वज़ू दे सकते, न कफन दे सकते, न दफन दे सकते। अल्लाह वहाँ इतना है गज़ल में क़ज़ाई رضي الله محمد وعلى نبينا رضي الله محمد وعلى حبيب الشيخ حبيب قرار جان مال الكتاب الحفاظ رضي الله محمد وعلى محمد جس کے اسم تنگیر ہو رضي الله جس میں وفرت عطا رضي الله محمد وعلى محمد ایران کو سرفراز عطا سطح نصیب عطا اور ایرانیوں کو کی حفاظت عطا مجلس کا ثواب اور اللہ کا ثواب اور ہم کا ثواب مرحوم سید انصار حسین زیدی ابن مرحوم سید غفور حسین زیدی کے نام اعمال میں مکتوب عطا فرما، جوار جنت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سب سے خاص دعا یہ امام زمانہ امام حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، جوان انصار میں شمار عطا فرما، تقبل منه انك انت السميع